آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ارشد علی۔ اگر تو آپ کے رقبے ریت والے ہیں، میرا ہیں، میکسیمم میرا ہیں، پھل والے ہیں، کمزور ہیں اور آپ اس میں گندم کی ایک کامیاب فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج کی ویڈیو میں ریت والی زمینوں میں گندم کی فصل کے لیے درپیش مسائل، چیلنجز، آبپاشی کی حکمت عملی، کھادوں کی حکمت عملی، فرٹیلائزر پلان اور زمین کی فزیکل امپرومنٹ ہے یا اس زمین کی فرٹیلیٹی امپرومنٹ ہے، اس کے اوپر کھلی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ریت والی زمین میں گندم کی فصل کے لیے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ریت والے رقبے نمی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں، اور نمبر دو یہ زمینیں خوراکی اجزاء کو یا نیوٹریشن کو زیادہ دیر ہولڈنگ پہ نہیں رکھ پاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری گندم کی فصل کو بار بار نیوٹریشن کی کمی کا سامنا رہتا ہے، خاص طور پہ نائٹروجن کی کمی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ان رقبہ جات میں لیچنگ کے پرابلم ہیں، چونکہ پانی زیادہ گہرائی تک چلا جاتا ہے اور وہ اس لیے کہ ریت کے پارٹیکلز یا ریت کے ذرات چونکہ موٹے ہوتے ہیں، ان میں نامیاتی مادے کی کمی ہوتی ہے، مطلب ان میں چپکنے کی جو خصلت ہے وہ نہیں ہوتی، تو پانی کے لیے سپیس زیادہ ملتا ہے تو پھر زیادہ گہرائی تک لیچ کرتا ہے، تو پانی کے ساتھ مکس ہو کے ہماری کھادیں بھی زمین کی گہرائی تک چلی جاتی ہیں، خاص طور پہ ہمارا نائٹروجن، اور آخر میں جو درجہ حرارت کا بیڈ افیکٹ ہے، برا اثر ہے، وہ اس طرح کے رقبوں پہ بہت جلد دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ریتلے رقبوں میں جب ہم گندم کاشت کرتے ہیں تو آخری پروسیس میں جا کے ہیٹ ویو چلتی ہے، گرم ہوا چلتی ہے، تو عام رقبہ جات کی نسبت ریت والے رقبے ہیں وہ جلدی پکائی کی طرف آ جاتے ہیں، چونکہ اس طرح کی سچویشن میں ہماری گندم جس مراحل میں بھی چل رہی ہو، دانہ بھرائی ہو چکا، ملکنگ کمپلیٹ ہے نہیں ہے، وہ پک کے تیار ہو جاتی ہے، دانہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، دانہ پچک جاتا ہے، دانہ کمزور رہ جاتا ہے، اس سے ہماری جو پیداواری ایوریج ہے اس کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ لاس ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہتر چیزیں بھی ہیں اس رقبے کی، ان کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں اس طرح کے رقبوں میں ایک تو ہوا کا وائلیشن بہت اچھا ہوتا ہے، پانی کا گزر ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، جلدی وتر میں آ جاتی ہیں، تو اس سے گندم کی فصل کی جو جڑیں ہیں وہ زیادہ لمبائی تک جاتی ہیں، زیادہ روٹ ہیئرز ہوتے ہیں، تو پودے کی گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی زمینوں میں جرمینیشن شرح بہت اچھی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اگلے سیکشن کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے رقبوں کی فزیکل امپرومنٹ کے لیے، ان کی زرخیزی کو بحال کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس طرح کی زمینوں کے لیے نامیاتی مادہ ناگزیر ہے، آپ کچھ بھی کریں نامیاتی مادہ آپ کو ڈالنا ہی پڑے گا، آپ روڑیاں ڈالیں، کمپوسٹ ڈالیں، آپ گرین مینیورنگ کریں، جنتر کی کاشت کریں، پھلیدار اجناس کی کاشت کریں، تو کسی نہ کسی صورت میں نامیاتی مادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مائکروبیل ایکٹیویٹی کو بڑھانا پڑے گا، یعنی بائیو فرٹیلائزر کا استعمال کریں تو زیادہ اچھے رزلٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی جی پی آر کا استعمال بھی اس طرح کی زمینوں میں اچھے نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے کہ ہماری اگر کہیں الگ جگہ میں اچھی زرخیز زمین ہے تو ہم وہاں کی مٹی بھی ہر سال یہاں پہ تھوڑی تھوڑی منتقل کرتے رہیں، تو اس کو لیزر کے ذریعے سے لیول کرتے رہیں، یا ایک ہی بار آپ کسی دوسری جگہ کی اچھی زرخیز مٹی، بھاری مٹی اٹھائیں اور اس طرح کے رقبوں کے اوپر ڈال کے ان کو مکس کریں اور زمین کا لیول کر دیں۔ اس کے علاوہ نائٹروجن کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ پھلیدار اجناس کاشت کیا کریں۔ دیکھیں گندم کے بعد اگر آپ جنتر کی کاشت کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس طرح کی زمینوں میں
मटर के प्लान करें, मूंगी का प्लान करें, माश का प्लान करें, चने का प्लान करें, गुवारा का प्लान कर लें या आप मसूर का प्लान कर लें। ये सारी वो फसलें हैं जिनकी जड़ों में नोड्स पाए जाते हैं, यानी गांठें पाई जाती हैं, और इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो हमारी इस तरह की जमीनों में नाइट्रोजन को बैलेंस करता है, जिससे आमतौर पे हमारी फसलें हरी भरी देखने को मिलती हैं और जमीन की जरखेजी में इजाफा होता है। जमीन के पार्टिकल्स में जो स्पेस है वो कम होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कि नमी ज्यादा देर तक बरकरार रहती है। वैसे भी जब हम इन फसलों को कल्टीवेट करते हैं, जुताई कर देते हैं अपनी जमीनों में, इनके अंदर मौजूद न्यूट्रिशन दोबारा इसी जमीन में जाती है और साइकिल का हिस्सा बनती है और हमारी जमीन की जरखेजी में इजाफा करती है। तो ये चंद इकदामात हैं जो हम अपनी इस तरह के रकबों में जो रेत वाले हैं, फल वाले हैं, इनमें जरखेजी को बहाल करने के लिए करते हैं। अब अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं। इनमें देखना है कि हम नमी को ज्यादा देर तक अपनी जमीन में कैसे बरकरार रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। नमी अगर ज्यादा देर तक बरकरार रहेगी तो न्यूट्रिशन की दस्तयाबी पौधे को ज्यादा देर तक रहेगी। अगर नमी जल्दी खुश्क हो जाएगी तो न्यूट्रिशन भी जल्दी खत्म हो जाएगी। पौधे बार बार डेफिशिएंसीज का शिकार होंगे, खुराकी अज्जा की कमी का शिकार होंगे। तो इसलिए नमी को बैलेंस करने के लिए हमारी पानी की हिकमत अमली होती है जितनी भी होती है। इसमें क्या है कि हमें एक तो बार बार पानी लगाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आम रकबों में 4 लगते हैं तो आप 6 से 7 पानी की नौबत भी अगर आती है तो आपको लगाने चाहिए। उसके अलावा भी तो इरिगेशन मेथड हैं वो बहुत सारे हैं इस तरह के रकबों में। जिस तरह के आप ड्रिप इरिगेशन के जरिए से पानी लगा सकते हैं, आप स्प्रिंकलर्स के जरिए से पानी लगा सकते हैं। अब चूंकि ये सारी चीज़ें हम पाकिस्तानी फार्मर्स की रेंज से बाहर हैं तो इसलिए इनका बात करना भी फजूल है। तो आप एक और तरीका आजमा सकते हैं। आप एक्वाजेल एक प्रोडक्ट है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्वाजेल रूट जोन के अंदर पानी को जेल में तब्दील कर लेता है, जिससे पानी की लीचिंग कम हो जाती है और नमी ज्यादा देर तक बरकरार रहती है। अब ऐसा नहीं है कि पानी जड़ों में जेल की सूरत में पड़ा रहता है। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर लें, आप जेल ले लें और जेल के साथ रेत की आमेज़श कर लें, रेत मिला लें, तो जेल अपनी असल शक्ल में बरकरार नहीं रह पाती है, वो गीली रेत की शक्ल में देर तक बरकरार रहती है और इसी को हम वत्तर का नाम देते हैं। और वत्तर ही मजबूरी है इस तरह की रकबाजात की। तो वत्तर बरकरार रखने के लिए आप एक्वाजेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई शानदार प्रोडक्ट है। अगले सेक्शन में हम खादों के इस्तेमाल के अगले कुछ हदायत हैं उन पर अमल पैरा होंगे। इसमें जो मेजर एलिमेंट हैं जिस तरह DAP, यूरिया और पोटाश, इनको बैलेंस इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी फोकस करना जरूरी होता है। इन रकबों में चूंकि नामियाती मादे की कमी है तो ट्रेस एलिमेंट की कमी भी जाहिर बात है, तो फिर इसको अलहदा से डालना भी जरूरी होता है। अब इसके बाद एक और बड़ा अहम पॉइंट है कि हमने जो खादें सिलेक्शन करनी है वो स्लो रिलीज होनी चाहिए, जो आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल हों और देर तक अवेलेबल हों। तो आपने फास्ट फूड ही जो सोर्स इस्तेमाल करने हैं उनमें DAP की तरफ आए, अच्छा सोर्स है इस तरह की ज़मीनों में। दूसरे नंबर पे अगर NP डाल रहे हैं, नाइट्रोफास डाल रहे हैं, तो फिर एंग्रो का NP डालना चाहिए आपको, क्योंकि एंग्रो का NP DAP तर्ज की साखत पे है। ये कम घुलने वाला सोर्स है, तो आप अगर NP डालना चाह रहे हैं तो फिर एंग्रो का डालें। और चौथे नंबर पे जो खादें डालने की स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा दें, हर पानी के साथ दें। इस तरह की रकबों में चूंकि न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा देर तक होल्डिंग पे नहीं रह पाती है, इसलिए पौधे की चूंकि हर स्टेज पे खुराक की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डालें लेकिन हर बार डालें, यानी कि हर पानी के साथ खाद चलनी चाहिए। अब आते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ। इसमें एक फर्टिलाइजर प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और रेतले रकबाजात में
अच्छी पैदावार के लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट बनाता है। नंबर 1 तो आप काश्त के दौरान डीएपी डालना चाहिए, और डीएपी आपको 1 से 2 बैग, ठीक है, मतलब आप कम खर्च करना चाहते हैं तो 1 बैग डालें, 1.5 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, ज़्यादा फुर्सत हो तो आप 2.5 बैग भी डाल सकते हैं। इस तरह की ज़मीनों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप नाइट्रोफास डालना चाह रहे हैं तो एंग्रो का डालें, ये स्लो रिलीज है, तो ये 2 से 3 बैग आप डाल सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी होगा और अच्छा रिजल्ट बना लेगा। पोटाश का जो इस्तेमाल है उसमें एमओपी की तरफ तवज्जो दें, वो करने आप एसओपी भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर कोशिश कीजिएगा आप क्रैश फार्म वाला इस्तेमाल करें। अगर तो आपके रकबे आपाश हैं, फिर आपको बेसल में अगर पोटाश नहीं भी डालेंगे, खर्चा मैनेज करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। और अगर आपकी ज़मीन में पानी नहीं लगते हैं तो फिर आपको पोटाश भी बेसल में ही डालना पड़ेगा। ये 25 किलो फी एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अब साथ में आपको या तो तैयार शुदा जो नामियाती मादा है वो 1 से 2 बैग डालने होंगे। जिस तरह के आर्चिविट स्वात एग्रो का अच्छा प्रोडक्ट है, आप वो भी डाल सकते हैं। अगर ये नहीं तो कम से कम कार्बनिक खादों की तरफ लाजमी है, जिस तरह के ह्यूमिक एसिड है, आप 8 किलो फी एकड़ के हिसाब से ग्रैनुलर फॉर्म का डालें, इसके अच्छे रिजल्ट होंगे। पहले पानी पे जो हमने खाद डालनी है, इसमें एक कंप्लीट बैग, एक मुकम्मल बैग यूरिया का होगा। मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को फोकस किया जाएगा, जिस तरह के हम सुल्तान के नाम की एक एप्लीकेशन करते हैं, इंतहाई अच्छा प्रोडक्ट है। वो 5 किलो फी एकड़ के हिसाब से डालेंगे। अब इसके साथ में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो लाजमी हैं, एक तो बायो फर्टिलाइजर 10 लीटर और ह्यूमिक एसिड 5 लीटर फी एकड़ के हिसाब से डालने हैं। ये 2 चीज़ें आप फ्लड में डालेंगे, बाकी पहली वाली 2 चीज़ें आप छटे के जरिए भी दे सकते हैं, ताकि पूरी फील्ड के ऊपर खाद इक्वल जाए, एक जैसा बैलेंस फर्टिलाइजर। दूसरे पानी पे हम कैन ग्वारा का एक मुकम्मल बैग डालेंगे, और इसके साथ में एडिशनल अगर करना चाहें तो एमओपी 25 किलो यहाँ पे डाल सकते हैं, या आप क्रैश फार्म का एसओपी भी डाल सकते हैं, वो 5 किलो काफ़ी होगा। अगर नहीं भी डालेंगे तो कम से कम ह्यूमिक एसिड 5 लीटर फ्लड में आपको लाजमी देना चाहिए। गोब वाली जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको यूरिया 15 से 20 किलो इस तरह के रकबों के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह के रकबों में नाइट्रोजन का स्टेटस भी काफ़ी कमज़ोर होता है, बार बार ज़मीनें खुश्क हो जाने की वजह से पौधे के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। आप 15 से 20 किलो यूरिया यहाँ पे डाल सकते हैं गोब की हालत पे, और इसके साथ में पोटाश माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेस्ड, जिस तरह से मैं लसानी की एप्लीकेशन करता हूँ, आप 5 से 8 किलो फी एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। आखिरी पानी मिल्किंग स्टेज पे होता है और इंतहाई टेक्निकल पानी है। आपने देखना है कि आपकी फसल पे दाना इस पोजीशन में है कि कहीं पे दाना सख्त होके नज़र आ रहा है और कहीं पे अभी कच्ची मिल्किंग स्टेज पे है, भराई हो रही है, या आप सिट्टा देखें तो इसका भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो नीचे वाली अभी हिस्सा है वहाँ पे मिल्किंग चल रही है, तो इसका मतलब अभी पानी का टाइम है। तो आप खाली पानी यहाँ पे एक लाजमी लगाएंगे। अगर यहाँ पे आप पानी नहीं लगाते हैं तो आपका जो दाना है वो कमज़ोर पड़ जाता है, आपकी एवरेज जो है ना वो मुतासर होती है। यहाँ पे एक चैलेंज आता है, चूँकि रेत के पार्टिकल्स मोटे होते हैं और इनमें चिपकने की खसलत नहीं होती। आप एक मुठ रेत के ऊपर एक तिनका खड़ा करें और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालें, आप महसूस करेंगे कि रेत के ज़र्रात पानी के साथ बहना शुरू हो जाते हैं, और जो तिनका आपने खड़ा किया इसके ऊपर वो गिर जाता है, खुद ब खुद ही गिर जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है आखिरी मरहले में, जब हम पानी लगाते हैं तो हमारी फसल आमतौर पे टलियों की शक्ल में बगैर हवा के गिरना शुरू हो जाती है। उसकी आपने फिक्र नहीं करनी है, फसल कुछ हिस्सों में गिरेगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन पानी आपने ज़रूर लगाना है, यही बेहतरीन फैसला होगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। नए फार्मर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
اور اگر ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہے، فائدہ مند لگی ہے تو اسے شیئر لازمی کیجیے گا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپوں کا حصہ بنیں اور ہمیں واٹس ایپ کے اوپر آپ کسی بھی قسم کی معلومات لے سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔